आज हम लोग एक ओवरव्यू देंगे यहाँ पर कि किस तरह के हैं, क्या है उनकी नेचर, क्या है, और ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या उसमें हमें ध्यान रखने वाली बातें हैं। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस द सोशल ऑडिट एंगेजमेंट। सोशल ऑडिट एंगेजमेंट का मेन पर्पस क्या है कि क्या क्या इसमें होना चाहिए। आप देखिए, जब हम सोशल ऑडिट की बात करते हैं तो सोशल ऑडिट में कौन कौन सी पार्टीज होंगी। देयर कुड बी अ 3-party रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग अ सोशल ऑडिटर। फर्स्ट ऑफ ऑल, सोशल ऑडिटर नंबर 1, and the second one is responsible party. It means the social enterprises, either it can be the profit organization and the not profit organizations also. And the last one, third one, is the intended user. Intended user can be anyone. It can be either responsible party also, social enterprises also. It can be the government also. It can be the regulatory body also. It can be the stakeholder also. Anyone can be the intended last user. So, in social audit engagement, the main objective is to cover the project, program, or intervention which has been carried out by the social enterprises and the project monitoring framework. And in also, whatever the auditor is doing, he has to take the evidences of his justification, what exactly he wants to report. For all the information, he has to take care all the evidences, what is his findings. So only then he can draft a report. And then in the final, auditor needs to draft a written audit report that will also call the social audit report. Now, as here we will discuss social audit standards. As per now, 16 social audit standards have been issued by the ICI, SAS 100 to SAS 1600. We will discuss one by one here. So I think we should move now to the standards. So I will skip here for the introduction part here. So first one is SAS 100, eradicating hunger, poverty, malnutrition, and yeah, inequality. So here I would like to inform all of you that social audit standards are divided into 4 sections. First one is introduction part. Second one is evaluation of the social impact. Third one is assessment of challenges and limitations. And the fourth one is classification of the areas and sub areas. All these 4 subsections are covered with each of the social standards. So auditor needs to take care of all these 4. So in some of the standard, many of the standards, like introduction is same for all. So and we will, I will take care of it. So first of all, introduction part. What exactly social audit standard says? For the introduction it says it is independent impact assessment carried out by the social auditor for social enterprises, and it also talks about the audit steps and the procedure, what exactly we need to take care, and sets minimum requirements what needs to be followed. So first part is here for the introduction, and the second we start for the evaluation of the social impact. For the evaluation part, first one is when we go for the any of the audit assignment, we need to take care what we need to get the history of the customer, we need to get the history of the project also. So first of all, any of the auditor will have to take care data collection part, the first part of the evaluation of the social impact. In the data collection part, auditor needs to get the information about the social enterprises and what exactly the project is. So he can take care of the information, he can take the information of the direct beneficiaries, immediate family members of the direct beneficiaries, contractors, suppliers, funding entities, monitoring agencies, and the key program officials of the reporting entity. And after collecting the data from these different areas, now the auditor needs to take care of the desk review. The auditor has to do the working in their office also, what they want to do and what exactly they want to do. So here we will discuss some of the information. Just like in the first SAS 100, details of the meal provided, subsidy free food rations, cash subsidy, assistance provided, job opportunities given, awareness campaigns conducted, feedback from the beneficiaries, and the photographs of the events. They need to review all this information before going to the area.
So in the next part of the evaluation of the social impact is inspection and the personal interviews. Whenever the auditor wants to go, just like अगर हम बात करते हैं नॉर्मल अपने ऑडिट की हम बात करते हैं, हम लोग फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिट करते हैं. फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे हम लोग जो भी हम लोगों का इनकम होता है, एक्सपेंडिचर होता है, वो हम लोग वीकली चेक कर लेते हैं, वाउचर्स चेक कर लेते हैं. बट इन केस ऑफ द सोशल ऑडिट में क्या है कि फाइनेंशियल से के साथ साथ हमें एग्जैक्टली जो आउटकम होना चाहिए उस प्रोजेक्ट का, कि सोसाइटी को क्या मिला या सोसाइटी पर उसका क्या इम्पैक्ट था, वो भी हमें ध्यान में देने वाली बात है यहाँ पर. तो उसके लिए क्या होगा कि ऑडिटर नीड्स टू गो फॉर द एरिया इन द एरिया and he need to do the inspection also, and he need to take care of the personal interviews of the beneficiaries also. So now we will go for the next part. So after doing the desk work and the collecting information, inspection, now auditor need to take care of the some of the question answer. He need to prepare some of the question answer. On that basis he will have to prepare their report. So some of the questions, sample questions I have mentioned in each of the social audit standards. So we will discuss one by one here. Did the target people receive the benefit? मतलब जिनके लिए ये प्रोजेक्ट किया हुआ था, उन्होंने अल्टीमेटली क्या उनको कुछ बेनिफिट मिला? And whether there was a decline in the starvation rate, मतलब कि जो उनका starvation rate है उसमें कुछ डिक्लाइन हुआ है कि नहीं हुआ है? Whether there was improvement in the nutritive value, whether employment opportunity was generated or not, and did the BPL holders reduce or not? Whether the standard of living is also increased or not. So on these sample questions, auditor needs to prepare his own question also. They can prepare on that basis. They can finalize what exactly happening there. So in the third part of the social audit standard, we will discuss assessment of challenges and the limitations. Impact report बनेगी, उसको कहाँ पर वो किस तरह से इम्पैक्ट करेगा और फर्दर कहाँ पर इम्प्रूवमेंट का स्कोप. तो अभी हम इसमें आगे डिस्कस कर लेंगे असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस, व्हाट एग्जैक्टली द चैलेंजेस आर फेस्ड बाय द स्टेक होल्डर्स एंड द सोशल एंटरप्राइजेस आल्सो, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस फेस्ड बाय द सोशल एंटरप्राइजेस. So here were some of the examples of the commonly faced issues. Challenges are just like in case of hunger, food they are providing. Food wastage is the common area. There they can see many of the areas there are loss of food wastages are there. Maintaining nutritious fresh quality due to in short of life, shelf life. Limited access to education and employment opportunities. Social discrimination and execution. Resistance to change. Resistance to work and the gain employment. And unavailability of the adequate funds. And the most important, lack of the awareness of the rights. These are the some of the commonly faced issues which are faced by the enterprises. And now social auditor has to identify the inherent limitations also of the evaluation process. जो भी वो काम कर रहा है, जो भी प्रोजेक्ट हुआ है, उसमें कुछ ना कुछ एक इनहेरिटेंस रहती है लिमिटेशंस की, जिसको कि कोशिश करना होता है कि और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है. And some of the limitations are just like cases of non-response in case the question is not addressed in the person. Properly questionnaire को नहीं पढ़ा गया. Some of the question are skipped by the respondent. Properly जो questionnaire बनाया गया था वो properly respond नहीं किया गया, उसमें से कुछ क्वेश्चन छोड़ दिए गए. Just like also non-availability of the respondents after completion of the services provided. किसी को जो सर्विस दी गई थी एरिया के अंदर पर्टिकुलर पर्सन को, वो नहीं मिले, वहां पर किसी तरह से माइग्रेट हो गए, कुछ भी हुए, और जब सैंपल के लिए गए, इंस्पेक्शन के लिए गए, तो वो पर्सन अवेलेबल नहीं थे. या फिर एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि चेंज ऑफ द कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी वो अभी जब कॉन्टैक्ट करने के लिए गए तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग थी, मिल नहीं रही. So in significant limitations observed during the assessment, it may influence the user of the impact report decision making must be highlighted by the social auditor. Social auditor को significant limitations है उनको highlight करना चाहिए अपनी audit report में, so then in case of any improvement they can improve. And the fourth part and the last part of each of the social audit standard is area and the sub areas. एरिया एंड सब एरिया मीन्स कि अल्टीमेटली गोल क्या है उस प्रोजेक्ट को करने के लिए. जिस भी हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे उसके लास्ट में क्या है कि अल्टीमेटली क्या अचीवमेंट होनी चाहिए थी. सपोज
SS 100 की हम बात करते हैं, उसका एंड पर्पस क्या है? एंड द हंगर एंड ensure access by all and the last and all forms of malnutrition and address the nutritional needs of adolescents, girls, pregnant and lactating women, the older person, eradicating extreme poverty, empower and promote the social, economic and the political inclusion of all respective of age, sex, disability, race. तो ये है. अभी हमने डिस्कस किया SAS 100. अब हम आगे चलते हैं SAS 200 के लिए. SAS 200 बात करता है प्रमोटिंग हेल्थ केयर इंक्लूडिंग मेंटल हेल्थ केयर, सैनिटेशन एंड मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर. इसके भी सेम 4 पार्ट है. इंट्रोडक्शन है, इवैल्यूएशन ऑफ द सोशल इंपैक्ट है, असेसमेंट ऑफ चैलेंजेस है, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया, सब एरियाज है. इंट्रोडक्शन पार्ट इज द सेम, सो आई वुड लाइक टू स्किप हियर. इंट्रोडक्शन में सेम वही चीजें आएंगी कि इम्पैक्ट असेसमेंट ऑफ सोशल एंटरप्राइजेस है, ऑडिट स्टेप्स एंड प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए, क्या-क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है. The next one is evaluation of the social impact. इसमें भी सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे कि डाटा कलेक्शन क्या है. डाटा कलेक्शन के लिए डायरेक्ट बेनिफिशियरीज से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स, सप्लायर्स हैं, फंडिंग एंटिटीज हैं, मॉनिटरिंग एजेंसी हैं, द की प्रोग्राम ऑफिशियल्स ऑफ द रिपोर्ट. ऑन द सेम बेसिस इंस्पेक्शन एंड पर्सनल इंटरव्यूज कंडक्ट करने होंगे. एंड नेक्स्ट वन इज द इवैल्यूएशन क्वेश्चन. किस तरह से इसको इवैल्यूएट करना चाहिए. सेम पैटर्न रहेगा. Whether did the target people receive the benefit, हुआ कि नहीं हुआ. Suppose अब इसमें health care से अगर हम बात करते हैं, whether the number of amount spent on medical equipments कितने हैं वो चेक करना होगा. Number of amount spent की equipment कितना है, number of amount spent on medical staff, nurses, doctors को कितना हुआ, number of beds कितने create किए गए, number of free reports tested from the preventive health checkup कितना हुआ, ratio of the patient and the treated doctors कितना है, number of health camps conducted कितना. बस मेकिंग अवेलेबल सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात करते हैं. नंबर ऑफ अमाउंट स्पेंट कितना है, किस चीज के लिए, कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स एंड आरओ प्लांट्स के लिए कितना है. नंबर एंड अमाउंट स्पेंट ऑफ बोरवेल डक्ट्स कितना है, अंडरग्राउंड वाटर पाइपलाइंस कितने हुए, ड्रिंकिंग वाटर टैंक्स कितना हुआ, वॉइस ये साउंड का जनरेशन एंड कंजम्पशन ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर कितना. And in the same basis, challenges इसमें क्या फेस करने को मिलते हैं. कॉमनली चैलेंजेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड एग्जीक्यूशन. कोई भी आप काम करते हो हेल्थ केयर का या ड्रिंकिंग वाटर के लिए, सोशल डिस्क्रिमिनेशन आ सकता है कि वो छोटा है, बड़ा है, कौन है, किस तरह का है, क्या है, ध्यान दिया जाता है. कई बार इनसफिशिएंट नंबर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्रॉपर्ली जितने होने चाहिए हॉस्पिटल्स या और इंस्टीट्यूशन वो नहीं है, कम है. लैक ऑफ ट्रेनिंग है जो मेडिकल इक्विपमेंट है. And access to medical facilities है, resistance to change है, unavailability of medical funds. The last है lack of awareness of rights and entitlements of the schemes. मतलब ultimately schemes कौन-कौन सी गवर्नमेंट्स की हैं, लोगों को उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है. And the next one is assessment of the limitations. मेन इसमें क्या रहता है, इसमें कि क्वेश्चनियर्स को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया गया, शिफ्टिंग हो गई या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैं, चेंज इन द कॉन्टैक्ट डिटेल्स. तो इसी के साथ हम इसमें गोल्स की बात कर लेते हैं. इसमें क्या कि एंड प्रिवेंटिव डेथ ऑफ न्यू बॉर्न्स एंड द चिल्ड्रन अप टू 5 years ऑफ द एज कितने हैं, एंड ऑफ द एपिडेमिक्स एंड द एड्स, मलेरिया, इलेक्ट्रिक ट्रॉपिकल डिसीजेस अगर कुछ है, रिडक्शन इन डेथ एंड इंजरीज फ्रॉम द रोड ट्रैफिक कितना इंप्रूवमेंट हुआ, इंश्योर यूनिवर्सल एक्सेस ऑफ सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज कितना हुआ, achieving universal and equitable access to safe, affordable drinking water for all. Means water improving water quality by reducing pollution. छोड़ो पापड़ दे दो. छोड़ दो. Now we will discuss the next, the third one social audit standard is promoting education, employability and livelihoods. So it also has the same 4 parts. Introduction part I have skipped. So the next one is data collection. The data collection in here, data direct beneficiaries are students, trainees, participant attendees. And the next one is parents and the guardians of the direct beneficiaries, faculty, teachers, management personnel of the education institutes, partners, recruitment agencies, the employers, monitoring agencies, and the key program officials of the reporting entity.
नेक्स्ट वन इज सोशल इम्पैक्ट डेस्क रिव्यू। रिव्यू के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? एनरोलमेंट फॉर्म ऑफ द स्टूडेंट्स, कितने लोगों ने एनरोलमेंट बच्चों ने किया, उनके फॉर्म्स हम चेक कर सकते हैं। मोर्टेलिटी रेट, inclusive the mortality जैसे rate, कि attendance register of the students, baseline, midline and the endline assessment formats की उन्होंने जो mid मेरा assessment हुआ था उनका क्या format था, क्या result था, feedback from the students, CV of the existing faculties, MOU between the reporting entity and the education partners, and the last one is photograph of the passed out students. These are only the samples. Auditor can extend up to districts. And the next one is inspection and the personal interviews, same like previous. And the question, evaluation questions are here are how many quality education trainings were imparted, quality, whether how was the quality of the parent teaching engagements, has the training been useful to the present potential course of the study, has the access education improvement, whether the training has improved their literacy level or not, and the participants are satisfied with their learning and the assessment procedures or not. These are the some of the evaluation questions here. सर अनमोल जी, Hello. अनमोल जी, लास्ट स्लाइड में आपने कहा कि ऑडिटर एक्सटेंड कर सकता है अपने जो क्वालिटी चेक्स हैं हाँ टू जी, सर्टेन एरियाज आल्सो। कैन यू डिस्कस दोज एरियाज जहाँ पे कि नॉर्मली आपने एज पर योर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हाँ जी। एक्सटेंडेड योर एरियाज ऑफ ऑडिटिंग, सोशल ऑडिट? नहीं, सोशल ऑडिट की अगर हम अभी ना बात कर रहे हैं, देखिए हर एनजीओ की हर अपनी अलग एक फील्ड होती है। अभी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं 16 स्टैंडर्ड्स की, 16 वेरियस जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, अलग अलग स्पेसिफिकेशन लाइन की बात करते हैं। सपोज जैसे हम 300 पर मैं हूँ अभी, प्रमोटिंग एजुकेशन पर है, ये एजुकेशन से बात करता है। इससे प्रीवियस हमने बात किया तो वो ड्रिंकिंग वाटर के लिए बात करता है। तो हर किसी की अपनी अपनी अलग रहती है। तो जिसमें जाएंगे, जिस तरह से काम करेंगे, जो एग्जैक्टली फाइंडिंग रहेगी, उसी बेसिस पर ऑडिटर अपना माइंड लगा करके उसको कितना बढ़ाना है स्कोप को या कितना कम करना है, उसके हिसाब से वो प्लान कर सकता है। Actually, sir, I was referring to what practical experience you had in your previous engagements on this extended auditing feature. नहीं, वो तो देखिए एक जनरलाइज आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना। अगर आप कुछ स्पेसिफिक बात करें कि किसी मैं आपसे ना यहाँ पे आपका प्रैक्टिकल जो आपको एक्सपीरियंस गेन हुआ, आई वुड लाइक टू हैव दैट नॉलेज। कि मेरे पास डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है कि जो कि डिफरेंट फील्ड में काम करती हैं। कोई पर्टिकुलर सपोज जैसे कोई एजुकेशन फील्ड में है, उनका डिफरेंट है। अब एजुकेशन फील्ड में क्या होता है कि जब जाते हैं तो जिन बच्चों को ट्रेनिंग दी गई है, जिस समय ट्रेनिंग दी गई थी उसी समय वो बच्चे वहां पर अवेलेबल थे, लेकिन जब ऑडिटर वहां पर रिव्यू के लिए गया तो उस समय वो माइग्रेट हो गए या पेरेंट्स उनके ट्रांसफर हो गए किसी भी वजह से, तो वो नहीं मिलते हैं। कई बार उस तरह की भी लिमिटेशंस आ जाती हैं। या उनके साथ में क्या होता है कि जो बच्चे और ट्रेनर्स थे, ट्रेनर्स जब उनको ट्रेनर्स दे रहे थे तो उस समय उनका क्वेश्चन रिपीट किया, लेकिन जब नेक्स्ट टाइम रिव्यू के लिए गए तो उस समय उनकी कहीं ट्रांसफर हो गई या कुछ और माइग्रेट हुए, वो ट्रेनर्स भी नहीं मिल पाते हैं। तो इस तरह की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। हाँ जी, तो इसमें क्या है कि चैलेंजेस किस तरह के हमें फेस करने को मिलते हैं। नंबर लैक ऑफ क्वालिफाइड टीचर्स, ट्रेनिंग स्टाफ। द नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। मतलब सपोज जैसे ऋषु जी बात कर रहे थे कि इसी तरह से कि नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ही अवेलेबल नहीं होते हैं। ट्रेनिंग ऑन ऑब्सोल्यूट इक्विपमेंट्स, पुराने सिस्टम्स और उनको ट्रेनिंग दी जाती है। रेजिडेंशियल अकोमोडेशंस फेवर नहीं होती हैं बिटवीन सैलरी एक्सपेक्टेड एंड द सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड, वहां पर बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू फिनिश एजुकेशन ट्रेनिंग ड्यू टू वेरियस प्रॉब्लम, कुछ की अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, किसी का कुछ रीजन हो सकता है, तो कई बार वो अपनी ट्रेनिंग को भी कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। The next one is assessment and the limitations. Here the same non-availability of the respondents due to relocation of the place and the completion of the course, change of the contact details of the respondents due to various reasons. SS 400 we will discuss here regarding the promoting gender equality, empowerment of the women. These also are in the fourth section: introduction, evaluation, assessment, and the classification of variables. In here, evaluation of the social impact part is here. Data collection. In data collection, here are the direct stakeholders, non-profits, implementing partners, direct populations, beneficiaries of the direct stakeholders, indirect stakeholders, funding entities,
monitoring agency, staff, board of the advisor of the trustee of the directors, and the key program officials of the reporting entity. And the desk review is the here part in this area. We need to check MOU and the contract between the reporting entity and the non-profit organizations, knowledge materials, reports, articles, videos, case studies shared with the non-profits, national policy of the women empowerment, Article 377, advertisements, feedback, enrollment data of the training, workshops, programs designed for the non-profits, photographs of the events. Inspection part is the same. And here the evaluation questions are here. Just like, has there been any increase in the women access to the health, education, information training? जो भी हुआ, प्रोग्राम हुआ, प्रोजेक्ट हुआ, उसके बाद में कुछ इंक्रीज हुआ है कि नहीं हुआ है? Whether there is an increase in the access to control over productive resources, services, or the assets? Whether women have been empowered with the claim of their rights in the public and the private spheres? Whether women are participated equally with the men in the programs? Whether the women are challenging their attitudes, change their attitudes on the rights and the women, violence against the women, just like here. So next challenges here, same phase. Challenges are being faced by the social enterprise here, work culture and the lack of the female leaders, affordability and accessibility of the child care, gender stereotypes, cultural mindset of the stereotypes, lack of flexible working practice, lack of mentors, social expectation regarding gender roles, just like household work, child care, lack of access to the land capital, financial resources, and the assessment of the limitations and the same pace, lack of access to the equal opportunity कि मतलब मेल फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, disparity of education and economic growth for the women. मैन और वुमेन के लिए एजुकेशन में भी आज भी हमारे समाज में डिफरेंस देखने को मिलता है, इकोनॉमिक ग्रोथ में भी डिफरेंस देखने को मिलता है. इस तरह से कुछ इनहेरिटेड लिमिटेशंस हैं हर अपने अपने स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं SAS 500 के लिए. ये इंपॉर्टेंट है और करंट हॉट टॉपिक आजकल चल रहा है. इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, addressing climate change, including mitigation and adoption forest wildlife conservation. Here we will discuss data collection part. Data collection, we need to take data from the direct beneficiaries. Who are the direct beneficiaries here? People living in the polluted, affected areas, forest officials, sustainability trainers, teachers in the schools, monitoring agencies, testing agencies, employers, and the key program officials, the reporting entity. Review part is here. We can take the reports generated under environment protection laws, sustainability policy of the organization, sample test reports, MOU between the reporting entity and the sustainable training partners, data on the generation of waste, details of the plants, details of the waste treatment plants, management policy of the water conservation and sustainable policy. Inspection part is same. And the question here is, did the target people get aware about the sustainable development? जिनको information देनी थी उन्होंने वो attend किया नहीं किया, और अगर वो session किया उन्होंने project के बाद में, whether they think differently after training. Next one is whether they use जो उनको knowledge मिली है, whether they are applying practically or not. Target areas benefit from the sustainable development initiatives, waste collection, recycling based result, have activities like timber extraction, water extraction from solar purifier stopped or not. हाँ जी, अब इसमें सैंपल है, किस तरह से क्वेश्चन और हो सकते हैं. फॉरेस्ट एंड वाइल्ड कंजर्वेशन के लिए, whether could degraded forests are restored or not, initiative on the biodiversity of the mountains, not impact result of the conservation initiatives of different animals. असेसमेंट सेम है. चैलेंजेस क्या फेस करने के लिए मिलते हैं इसमें? डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मेन इंपॉर्टेंट की सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट ही लोगों को समझ में नहीं आता है.
इनएबिलिटी टू अंडरस्टैंड द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो समझ में नहीं आता है. देयर इज नो बाउंड्री ऑन द ग्लोबल ग्लोबल क्लाइमेट की कोई बाउंड्री नहीं है किसी स्टेट में, किसी पर्टिकुलर एरिया में. अनस्ट्रेन्ड यूज ऑफ प्लास्टिक का आज भी बहुत सारा यूज होता है. देयर इज नो बाउंड्री. एंड अनरिस्ट्रिक्टेड डेवलपमेंट ऑफ द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर. टूरिज्म के लिए बहुत सारा नेचर के साथ छेड़छाड़ होता है. Assessment and the limitation part here is also the same. Sorry. And now important is 600 protection of national heritage, art and culture. Introduction part is same. We will discuss here the data collection. Data collection कहाँ से करना है? Archaeological department, tourist, art, students, trainees, participants, attendees, international visitors, maybe if available. Parents and guardians of the direct beneficiaries, the information की जा सकती है. फैकल्टी, टीचर्स, ट्रेनर्स, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है. मैनेजमेंट पर्सनल ऑफ द आर्ट एजुकेशन, उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है. रिक्रूटमेंट एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी से, और लास्ट वन की प्रोग्राम ऑफिशियल से इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट गैदर की जा सकती है. डेस्क रिव्यू में क्या वर्किंग करनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द हेरिटेज, मतलब इनका अल्टीमेटली किस तरह के प्रोविजंस हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. हिस्ट्री ऑफ द आर्किटेक्चरल रिपोर्ट्स ऑफ हेरिटेज साइट्स, उनकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए. टूरिस्ट फुटफॉल कितना है, फीडबैक रिकॉर्ड्स कितने हैं, उनकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. मेंटेनेंस रिकॉर्ड्स ऑफ द हेरिटेज प्रॉपर्टी है अगर है तो उसकी हम बिल्कुल ले सकते हैं. एंड द लास्ट वन इज रैंडम सैम्पलिंग ऑफ द सीसीटीवी रिकॉर्डिंग्स. अगर अवेलेबल मिल जाती हैं तो उनको हमें देखना पड़ेगा ताकि अल्टीमेटली गैदर किया जा सके कि कितनी हमें वर्किंग करनी है और क्या इंफॉर्मेशन हमारे पर्पस के लिए है. Inspection part is here also same, and the question here is heritage site attracting tourist and footfall? जो अल्टीमेटली प्रोजेक्ट हुआ, जिस पर्पस के लिए काम हुआ, उसके होने के बाद में क्या टूरिस्ट अट्रैक्ट हुए, उनका फुटफॉल बढ़ा, वेदर at the place of the heritage site bringing employment, कुछ employment generate हुआ कि नहीं हुआ, whether socio culture sustainability of the culture heritage कुछ हुआ, what is the level of historic and the cultural awareness, the target group, उन ग्रुप के बीच में कुछ अवेयरनेस आया कि नहीं आया उस चीज को लेकर के. does the heritage social issues, does the heritage target उनका क्या है, are there adequate efforts in the architectural conservations, कुछ हुआ है, नॉलेज कुछ हुआ है कि नहीं हुआ. चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं? लैक ऑफ नेशनल आर्किटेक्चरल डाटाबेस, अल्टीमेटली डाटाबेस ही अवेलेबल नहीं होता है हेरिटेज साइट्स के बारे में कितनी बार, या ट्रेनिंग जो है वो एब्सोल्यूट इक्विपमेंट्स पर होती है. न्यू टेक्नोलॉजी की कमी होती है, जस्ट लाइक 3D लेजर स्कैनिंग नहीं अवेलेबल होती है, और LIDAR जो है लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इनकी कमी होती है. ड्रोन सर्विस नहीं हो पाते हैं. नेशनल पॉलिसी जो कंजर्वेशन की है, इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड, वो होनी चाहिए. कंजर्वेशन प्लान टू बी प्रिपेयर्ड फॉर द साइट्स बिफोर अंडरटेकिंग एनी कंजर्वेशन वर्क्स. सेम असेसमेंट पार्ट पे यही है कि नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स हैं, जिनको साइट सीइंग हुआ, जो टूरिस्ट आए वो उस समय थे, जिनको अवेयरनेस की उस समय अवेलेबल थे, बाद में नहीं मिले, अवेलेबिलिटी नहीं हो पाई, चेंजिंग कॉन्टैक्ट डिटेल्स हुआ, किसी भी रीजन से क्वेश्चनियर्स था वो प्रॉपर्ली उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया होता, कुछ भी रीजन हो सकते हैं. Next, we would like to discuss here SA 700, that also talk to training to promote rural sports, nationally recognized sports, Paralympic sports and the Olympic sports. Introduction part is same here also. Data collection. In data collection, we need to take data from the direct stakeholders, which can be implementing partners and the social enterprises also. Target population, beneficiary of the direct stakeholders, indirect stakeholders, funding entities, board or advisors, monitoring agencies, staff, and the last three performing officials of the reporting entity. Review part में important क्या है? MOU or contract between the reporting entity and the non-profit organization, selection criteria of the enrollment beneficiaries, achievements and outcomes, knowledge materials that they have shared, वो हम चेक कर सकते हैं.
फीडबैक जो है अवेलेबिलिटी वो हम देख सकते हैं क्या है उसमें, टेस्टिमोनियल रेटिंग्स, रिकमेंडेशंस अगर कुछ हैं तो, एडवर्टाइजमेंट किस तरह से किया गया न्यूज़पेपर्स में, सोशल मीडिया में, उसकी इंफॉर्मेशन गैदर की जा सकती है। फोटोग्राफ्स अल्टीमेटली क्या है वो कुछ गैदर किए जा सकते हैं इवेंट्स के लिए, प्रोसेस रिपोर्ट्स चेक की जा सकती हैं इफ अवेलेबल, रिव्यू ऑफ ग्रांट यूटिलाइजेशन अगेंस्ट द अचीवमेंट ऑफ द की अवेलेबल वो चेक किए जा सकते हैं। Inspection part is also here same, and the questionnaire part is here. What are your views regarding existing situation of the sports in India? कि at present जो सिनेरियो है स्पोर्ट्स का हमारे देश में वो क्या है, उसको किस तरह से आगे इम्प्रूव किया जा सकता है, जो एग्जैक्टली काम हुआ है जिस प्रोजेक्ट को लेकर के सोसाइटी सोशल एंटरप्राइज ने काम किया उसके बाद में, if there is an increase in the access to the sports development platforms on the young sporting talents, उनके लिए कुछ इम्प्रूवमेंट हुई है, access to the adequate resources की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, do you think sport is undervalued compared to the other professions in India, if yes what are the reasons। आज भी हम देखते हैं कि कई बार स्पोर्ट्स को लेकर के एकेडमिक के कंपैरेटिवली डिफरेंस आ जाता है, and the different government initiatives and the resources available from the government both to support the social development in the country, has the program changed or change attitudes on the rights of the differently abled Paralympic sports, and has there been adequate number of sport coaches and the trainers, कुछ हैं, कमी है, क्या है वो देखना पड़ेगा। And the challenging part is here inadequate government budgets for sports development। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैलेंज स्पोर्ट्स के मामले में देखा जाता है कि जो एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट है किसी पर्टिकुलर एकेडमी की, बजट की या किसी स्पोर्ट्स इवेंट के लिए, वो प्रॉपरली पूरी नहीं हो पाती है। लैक ऑफ इंटरनेशनल लेवल ऑफ कोचेस, कि जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे देश के होनहार खिलाड़ी जाके परफॉर्म करते हैं उनको प्रॉपरली ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है, उतना उस लेवल के इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है। एंड द बायस टुवर्ड द पैरालंपिक इन द वुमेन स्पोर्ट्स, कि जो मेल स्पोर्ट्स और वुमेन स्पोर्ट्स के बीच में आज भी डिफरेंस देखा जाता है। सोशल एटीट्यूड्स टुवर्ड द स्पोर्ट्स एंड द वायबल कैरियर ऑप्शंस, आज भी पेरेंट्स के बीच में या किसी समाज के बीच में अगर हम जाते हैं तो वो दोनों ऑप्शंस में से चेक करते हैं, either the it is viable for the career option or the education field, most of the person will prefer for the education instead of the sports। Lack of adequate sports training institutes in the states, lack of sports training in the rural areas also, lack of sports as an academic subject in the comparison with other subjects। स्कूल के अंदर, इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो टोटल एक एकेडमिक सब्जेक्ट्स होते हैं उसके कंपैरेटिव में स्पोर्ट्स को निग्लेक्ट किया जाता है, बहुत कम ध्यान दिया जाता है। Assessment is also here the same, non-availability of the respondents after completion of the course, जिनको ट्रेनिंग दी गई थी वो नहीं मिले, कंप्लीट होने के बाद में रिलोकेट हो गए, शिफ्ट हो गए, और आइदर उनकी कॉन्टैक्ट एड्रेस चेंज हो गई या क्वेश्चनियर्स जो थे वो प्रॉपर्ली फिल नहीं थे या उन्होंने प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड नहीं किया। अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एसएस 700। Now we will discuss here the SAS 800 supporting incubators of the social enterprises। Here we will discuss data collection. Data collection can be done from the stakeholders. What are the stakeholders here? Incubating social enterprises and research development projects. Target population beneficiaries of the direct stakeholders. Indirect stakeholders also here. Funding entities, government and related institutions, media agencies, academic institutions, professional groups. Board of advisory trustee, directors, monitoring agencies, key performance program officials of the reporting entity। After data collection, next is desk review. Desk review, important is MOU and the contract between the reporting entity and the incubators, research development projects. Sorry. Knowledge materials, periodic performance reports highlighting achievements, outcome against the predefined targets, feedbacks provided by the incubator, advertisement, leaflets, newspapers, social media, photographs of the training in the workshops, if any, CV of the and remove of the faculty trainers if available. Inspection part is also here the same. Now we'll discuss the questionnaires of the particular supporting incubator of the social enterprise here.
After the program or the service is rendered, did the incubatee attend the training? Whether they properly attend the training or not. The major part, sometimes we observe that the target people are not attending their trainings, not attending their workshop, but they have to come. And after attending the trainings, do they think differently? Whether they learn something they did not know earlier, and then whether they use or apply the knowledge they gain from it, and whether the learning and the knowledge they receive translate into the noticeable change or impact their approach, कि उससे उनकी कुछ डे टू डे रूटीन में कुछ चेंज आया है, वर्किंग में कुछ आया या नहीं आया. For the research and development, it is did the amount and the duration of the funding sufficient to meet their research, कि जितनी research and development के लिए होनी चाहिए थी, उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या उतनी अमाउंट उनको मिली कि नहीं मिली, या जितना पीरियड उनको चाहिए था, एक्सपेक्टेड था रिसर्च के लिए, क्या उतना उनको मिला या नहीं मिला. Whether support services were found to be consistent with the needs and challenges of the, whether they are satisfied with the support services they have received. तो उनको support services मिली हैं, क्या वो उनसे satisfy हैं या नहीं हैं. This can also be checked. How was the quality of the training? जो services दी गई हैं, जो training दी गई है, उनकी quality कितनी थी, क्या उनसे improvement आई है, knowledge materials क्या है, this will also be checked. The next part is here, section 3, assessment of challenges and the limitations. Challenges किस तरह के face करने को मिलते हैं इसमें. Attribution of the impact between incubated and the incubated, दोनों के बीच में difference आता है. Relatively higher experience of the failures rates in the research. Research के काम में most of the time higher rates मिलते हैं failure के लिए. Unavailability of the adequate funds, properly जितने funds उनको चाहिए होते हैं उतने नहीं मिल पाते हैं. Mismatch of the expectation from the startups of the incubator. Startups की जो startups से जो expectations होती हैं incubator को, वो properly उतनी meet out नहीं हो पाती हैं. Failure के lower rate, success rate के chances बहुत ज़्यादा रहते हैं. Limited availability of the phase wise fund utilization data from the incubator and the research and development entities. Limitation part is also the same. Non-availability of the respondents after completion of the workshop. जिनको workshop दी थी, training दी थी, advisory services दी थी, उनकी properly availability नहीं हो पाई या contact details change हो गई. Next we will discuss SAS 900, supporting other platforms that strengthen the non-profit ecosystem and in fundraising and the capacity building. Here in the data collection part, we will discuss different stakeholders. Who are the stakeholders? Here, social enterprises carrying on the work, strengthening the non-profit ecosystem in fundraising. Once social enterprises can engage the second social enterprises to do their work. Target population, beneficiary of the direct stakeholders. Indirect stakeholders are here: funding entities, government and related institutions, media agencies, board of the advisors, monitoring agencies, and the key program officials of the reporting entity. Desk review is also the same of the previous MOU and contract between the reporting entity and the social enterprises. Feedback provided by the social enterprises, advertisement, newspapers, media, social media, photographs of the training, workshops, etc., CV and the resume of the faculty training, what they have provided. Inspection part and the personal interview part is also the same, alternate to do. Here, evaluation part is here. Did the social enterprise attended the training? Whether they are attending their training or not. What they think differently after attending the training. Whether they learn something about know what they already not know. Whether they are using their proper knowledge or not. Did they share it with others or not? मतलब जो अल्टीमेटली उन्होंने सीखा है अपने काम को या उनको जो भी इनको नॉलेज मिली है, क्या वो फर्दर शेयर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. Were the social enterprise satisfied with the support services they received? जो social enterprises को support services मिली हैं, क्या वो उससे satisfied हैं कि नहीं है? जो training दी है, what was the quality of that particular training? And the last, what were the consistent challenge faced in providing services? Support services to social. क्या support services देते समय कुछ भी challenges faced किए हैं, उनको डिस्कस किया जा सकता है.
challenges क्या आते हैं इस टाइम पे? Same attribution between the impact between the platform service provider and the social enterprises benefiting from their services. Absence of norms on fees क्या मिलनी चाहिए वो clear नहीं होता है. That can be charged from the facilitating fundraising opportunities. Limited connect and the organized networks कि जिसको फंड रेजिंग चाहिए, जिसने काम करना है, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म नहीं होता है किसको कनेक्ट करना है, और अल्टीमेटली जिनको कॉर्पोरेट्स को सपोज अगर काम देना है, प्रोजेक्ट करवाने हैं, उनके पास प्रॉपर सोशल एंटरप्राइजेस का कनेक्ट नहीं होता है, उनके पास प्रॉपर सोशल नेटवर्किंग नहीं होती. लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ वेल डॉक्यूमेंट डाटा फ्रॉम सोशल एंटरप्राइजेस, डाटा की अवेलेबिलिटी प्रॉपर नहीं होती. Sorry. And the assessment and the limitation part is also the same. Non-availability of the questionnaire, non-availability of the proper question respondents, non-availability of the respondents after completion of the workshops, change in the contact details of the respondents. Yeah. Now we will discuss SS 100. Important is here. Promoting livelihoods for rural and urban poor, including enhancing income of small and marginal farmers and the workers in the non-farm sector. Farmers and the non-workers. Workers or the non-farm sector, both. डाटा कलेक्शन इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? डाटा कलेक्शन के लिए स्टेक होल्डर्स कौन है इसमें? स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स are also here. Women representation, education level representation, representation of the disadvantaged section, society, workers of the non-farm sectors, family background of the direct beneficiaries, that can also be checked, training, imparting trainings, management personnels, monitoring agencies, and the key program officials of the reporting entity. Test review में क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी पेपर ऑफ द बाय द इंस्टीट्यूट सच एज नबार्ड. नबार्ड ने अगर फार्मर्स के लिए कोई पॉलिसी पेपर बनाया है तो उसको रिव्यू कर लेना पड़ेगा. रिपोर्ट्स एंड द पॉलिसी पेपर्स अवेलेबल ऑन डबलिंग द फार्मर्स इनकम. गवर्नमेंट हर बार कहती है कि किसानों की इनकम डबल कर दी जाएगी. उसके लिए क्या रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, क्या पॉलिसी पेपर्स अवेलेबल हैं, उसको चेक करना पड़ेगा. डिफरेंट एमएसएमई स्कीम्स जो आ रही है, मिनिस्ट्री जो दे रही है, उसकी नॉलेज होनी चाहिए इसमें. प्रोग्राम स्पेसिफिक अगर इंसेप्शन रिपोर्ट अवेलेबल है, इम्प्लीमेंटेशन प्लान अवेलेबल है, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अवेलेबल है, फोटोग्राफ्स ऑफ द ट्रेनिंग वर्कशॉप जो भी दी गई हैं उनकी अवेलेबिलिटी है, तो उसको रिव्यू करना चाहिए. इंस्पेक्शन द पर्सनल इंटरव्यू इज अगेन द सेम. इवैल्यूएशन के लिए क्वेश्चनियर है द सेम जस्ट लाइक प्रीवियस. सम ऑफ द डिफरेंट वेदर द टारगेट पीपल अटेंडेड द अवेयरनेस कैंपेन. जो अल्टीमेटली किसान थे, नॉन फार्म सेक्टर से वर्कर्स हैं, क्या उनके लिए जो कैंपेन था रन किया गया, क्या उन्होंने अटेंड किया? जिन्होंने अटेंड किया, क्या उनकी सोच बदली? क्या उन्होंने कुछ नया सीखा? जो सीखा क्या उन्होंने उसको अप्लाई किया, या उन्होंने दूसरे लोगों के साथ में शेयर किया, या उसके बाद में उनकी लाइफ में कोई चेंज आया है? क्या उनको लगता है कि प्रेजेंट सिचुएशन से जो उनकी पहले सिचुएशन थी, इस ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद में उनकी कोई सिचुएशन में चेंज आया है? Were the suitable solutions provided during the future awareness program campaign? मतलब कि जो कैंपेन किया गया उनकी अगर कुछ प्रॉब्लम थी, क्या उनको सॉल्यूशन मिला या नहीं मिला? इस तरह के कुछ क्वेश्चनियर्स हैं जो चेक करने पड़े. चैलेंजेस क्या इसमें मिलते हैं? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट विद द अदर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी इन द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स. जो अल्टीमेटली इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव मिलता है. लैक ऑफ प्लानिंग होती है. प्री असेसमेंट leading to unintended negative impact होता है. Limited participation from the local population due to social prejudice. Slow execution in the project resulting in negative impact. धीरे से अगर कोई काम किया या टाइम बाउंडेशन में अगर कोई काम नहीं किया गया तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है. सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ द बेनिफिशियरीज आर नॉट फेयर. कई बार कुछ फार्मर्स के बीच में किसको बेनिफिट देना है, नहीं देना है, वो सिलेक्शन का क्राइटेरिया आ जाता है जो कि जनरल ना होकर के स्पेसिफिक हो सकता है. वो भी चैलेंज आता है. कई बार बेनिफिशियरी फॉलिंग बैक इनटू पॉवर्टी ड्यू टू इन एब्सेंस ऑफ द सोशल एंड द फाइनेंशियल सिक्योरिटी. एक बार आपने किसी किसान की हेल्प कर दी, एक बार आपने किसी वर्कर की हेल्प कर दी, उसके बाद में अगर रेगुलर उनको नॉलेज नहीं है या उनको सिक्योरिटी नहीं मिली या काम नहीं मिला तो दे अगेन गो इनटू द पॉवर्टी. Assessment of the limitations again are the same.
कि जो किसानों ने, जो वर्कर्स ने ट्रेनिंग अटेंड करी थी, वो जब गए क्वेश्चन के लिए मिलने के लिए, वो नहीं थे वहां पर, शिफ्ट हो गए, या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज हो गई, या उन्हें क्वेश्चन उनको दिया गया था वो प्रॉपरली फिल नहीं किया, कुछ भी रीजन हो सकता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज 1100 slum area development, affordable housing and other intervention to build sustainable and essential sites. इसमें क्या है, डाटा कलेक्शन, slum developers, use of public transporters, older people with a different people with the disabilities, resident welfare association, इनसे डाटा कलेक्ट किया जा सकता है, गवर्नमेंट मिनिस्ट्री से चेक किया जा सकता है क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल हैं, लोकल चैम्बर ऑफ कॉमर्स से चाहिए इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है, रियल एस्टेट एसोसिएशन से, एंड द सेंट्रल स्टेट लेवल मॉनिटरिंग एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। अब इसमें रिव्यू करने वाली क्या इंपॉर्टेंट है, जनरल डॉक्यूमेंट की अगर हम बात करते हैं तो स्टैटिस्टिकल रिव्यू क्या है, सर्वे रिपोर्ट्स कौन कौन से अवेलेबल हैं, नेशनल स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन सा है, या प्रधानमंत्री आवास योजना की जो गाइडलाइंस है वो क्या है, वो पता होनी चाहिए कि क्या होनी है, क्या है सिटी डेवलपमेंट प्लान क्या है। अगर हम प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो उसमें लिस्ट ऑफ स्लम डेवलपर्स की लिस्ट लेनी है, रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट जिनको मकान अलॉट किए गए हैं की इंफॉर्मेशन, ओवरऑल प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, इंटरव्यूज एंड द फीडबैक फ्रॉम द स्लम डेवलपर्स हैं उनसे बात की जा सकती है, क्या उनका फीडबैक है, एंड एप्लीकेशन फ्रॉम द हाउस अलॉटमेंट, जो हाउस अलॉटमेंट के टाइम पे एप्लीकेशन थी उसको चेक किया जा सकता है, फोटोग्राफ्स ऑफ द अफोर्डेबल हाउसेज की, जो फोटोग्राफ्स हैं जिनको मकान मिले हैं मकान की, वो चेक की जा सकती है। Inspection is here same. Important is questionnaire, how many persons have been allotted the affordable houses, कितने लोगों को ये मिला है, is there a change in the standard of living, जो उनको मकान मिला है, जो गरीबी से निकल करके, जो स्लम एरिया से निकल करके जिनको मकान मिला, क्या उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में चेंज आया, क्या क्वालिटी ऑफ वाटर इन स्लम्स में इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉपर्ली मिला, जो मकान बनाए गए हैं क्या वो ड्यूरेबल हैं, कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी क्या है, इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि चेक किए जा सकते हैं। चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलता है, लैक ऑफ सफिशिएंट लिविंग एरिया, अब एरिया तो उतना ही है स्टेट का, अब उसमें कितने मकान बनाने हैं, कितनी जगह बनानी है, लोग ज्यादा हैं तो वो कई बार प्रॉब्लम आती है, लैक ऑफ अफोर्डेबल लैंड इन मेन सिटीज में कई बार प्रॉब्लम आती है, लैंड अवेलेबिलिटी की, लैक ऑफ हाउसिंग ड्यूरेबिलिटी, इंटीरियर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, ठीक है, जो मकान बनाए गए हैं उनकी क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है, लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लोगों को पता नहीं होता है गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में, इस तरह के कुछ चैलेंजेस सेम फेस करने को मिलते हैं। असेसमेंट इज अगेन द सेम कि जिनको नॉन अवेलेबिलिटी और रिस्पोंडेंट ड्यू टू लोकेशन, जिनको मकान दिए भी थे वो शिफ्ट कर गए, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, या अगर किसी के पास था तो उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज हो गई। SAS 1200, now it says about disaster management including relief, rehabilitation and the reconstruction activities. डाटा इसमें किससे कलेक्ट करना है, डायरेक्टली अफेक्टेड पीपल्स, इसमें कौन है, चिल्ड्रन, वुमेन, मैन, पीपल स्पेशल नीड्स, कॉमन कम्युनिटी लीडर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एनजीओज पर्सनल वर्किंग इन द डिजास्टर अफेक्टेड एरियाज, वॉलंटियर्स कौन कौन थे, उनसे भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। इसमें जर्नल क्या है, टाइप ऑफ डिजास्टर क्या है, डिजास्टर इम्पैक्ट क्या है, गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या है, नेशनल पॉलिसी क्या है, नेशनल डिजास्टर प्लान क्या है, इस तरह की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है। अगर हम प्रोग्राम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन प्लान क्या है, डिजास्टर रिलेटेड एड्स क्या है, एड असेसमेंट क्या है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स अगर अवेलेबल हैं तो वो हमें चेक करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन यार इसमें क्या है, what type of the activities were carried out for the disaster management के टाइम पे activities कौन कौन सी हुई, were the activities planned for the disaster activities able to cater their needs, जो उनको उस समय रिक्वायरमेंट थी क्या वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल की गई कि नहीं गई, was any process followed for conducting damage, मतलब उसके लिए लॉस असेसमेंट कुछ हुआ कि नहीं हुआ, कुछ प्रोसेस उसके लिए फॉलो किया गया कि नहीं किया गया, was the quality of the relief and the rehabilitation reconstruction are in line with the state and the national guidelines, जो प्रोग्राम जो रिलीफ दिया गया था whether it was in the line of the state, जो गाइडलाइंस है स्टेट की, नेशनल की, सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्या उनको फॉलो किया गया था या नहीं किया। चैलेंजेस क्या इंफॉर्मेशन आती है इसमें, चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं, इनसफिशिएंट डाटा, डाटा प्रॉपर्ली अवेलेबल नहीं हो पाता है,
आफ्टर डिजास्टर हुआ, उसके बाद में रिहेबिलिटेशन हुआ, प्रॉपरली इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं हो पाती है, रिलीफ मटेरियल वाज नॉट प्रोवाइडेड ऑन टाइम, मतलब जब उसकी रिक्वायरमेंट थी उस समय नहीं हुआ, डिले हुआ, क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्स वाज नॉट एबल अप टू द मार्क, इस तरह का होना चाहिए था, प्रॉपरली नहीं था। इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द अफेक्टेड पॉपुलेशन चैलेंज उसमें भी आते हैं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन विद द इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस, गवर्नमेंट और एनजीओ जिन्होंने काम करना है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव देखने को मिलता है। लिमिटेशंस इसमें कौन कौन सी रह सकती हैं? नॉन ट्रेसेबिलिटी ऑफ द बेनिफिशियरीज, जो अल्टीमेटली इनको बेनिफिशियरीज को बेनिफिट दिया गया था उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, लैक ऑफ प्री डिजास्टर इंफॉर्मेशन वो भी नहीं है, एंड द लैक लिमिटेड डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन्ड फॉर रिलीफ प्रोवाइडेड आफ्टर डिजास्टर। 13 is here, promotion of financial inclusion, अगर इसमें कोई सोशल एंटरप्राइजेस काम करती है तो उसके लिए क्या है आगे है ध्यान देने वाली बात। डाटा कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के लिए हमें ध्यान देना है डायरेक्ट बेनिफिशियरीज कौन कौन से हैं, इमीडिएट फैमिली मेंबर्स ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज, मैनेजमेंट पर्सनल्स, ट्रेनर्स, फंडिंग एंटिटीज, गवर्नमेंट एंड द रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, मॉनिटरिंग एजेंसीज। डेस्क रिव्यू क्या करना है, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड एजुकेशन प्रोग्राम हमें देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल प्लानिंग ऑफ द फंड्स क्या है, टाई अप विद द बैंकिंग एंड द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या है, असिस्टेंस इन कंप्लीटिंग केवाईसी एंड अदर बैंकिंग फॉर्मेलिटीज, ये भी हमें देखना पड़ेगा। प्रोग्राम्स ऑफ द इवेंट अगर कुछ हुआ है उसको चेक करना पड़ेगा। इंस्पेक्शन पार्ट इज द सेम अगेन। मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज आल्सो द सेम कि जिन पीपल को ट्रेनिंग दी गई है, जिनके लिए वर्कशॉप हुई है, क्या उनको कुछ बेनिफिट मिला, क्या उसके बाद उनकी सोच में कुछ चेंज आया, क्या उन्होंने उसको फायदा उठाया, क्या वो उसकी रूटीन की लाइफ में यूज करते हैं, वेदर आर द बेनिफिशियरीज बेटर इन्फॉर्म्ड देयर राइट्स एंड द एंटाइटलमेंट्स, जो गवर्नमेंट की डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, नाबार्ड की हैं, प्रधानमंत्री जनधन योजना है, लीड बैंकिंग स्कीम है, उसके बारे में कुछ उनको अवेयरनेस आई, के बारे में कुछ मालूम हुआ या नहीं। चैलेंजेस क्या फेस करने के लिए आते हैं इसमें, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ द राइट्स नहीं पता होते लोगों को, लुकिंग फॉर द कॉन्फिडेंस, आज भी दुनिया में देश में इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट नहीं करना चाहते हैं लोग, लैक ऑफ पावर सप्लाई इन द वीक नेटवर्क, आज भी बहुत सारे ऐसे एरिया हैं कि जहाँ पर नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं होती है या बिजली का अभाव होने के कारण प्रॉपर्ली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज नहीं हो रहा है, या लैक ऑफ नॉलेजेबल मैन पावर जो अल्टीमेटली ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, रिसोर्सेज का अभाव देखते हैं। लिमिटेशंस इसमें क्या क्या आ सकते हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रिस्पोंडेंट्स आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द सर्विसेज, उन्होंने ट्रेनिंग के बाद नहीं है, अनट्रेन्ड स्पेशल इन्वेस्टिगेटर्स कंडक्टिंग सर्वे, परसेंटेज ऑफ एरर इन डाटा, जो डाटा की अवेलेबिलिटी है उसका इंफॉर्मेशन जो उसकी एक्यूरेसी है पोस्ट नहीं बनाना चाहिए था, कुछ ना कुछ करके अगर निकाल लेते। 1400 में बात करते हैं फैसिलिटेशन एक्सेस टू लैंड एंड प्रॉपर्टी एसेट्स, डिसएडवांटेज कम्युनिटीज, रिकॉर्डिंग डाटा कलेक्शन इसमें कहां से करना है, ट्रेनर्स, पार्टिसिपेंट, अटेंडेes, guardians of the direct beneficiaries, trainers imparting training, employers, monitoring agencies, NGOs, any other. Review part क्या है इसमें, MOU between the reporting entity and the training, enrollment form of the trainees, course book of the trainees, feedback from the trainers, current status of the trainees क्या है उनका current status अभी, photographs of the passed out trained batches if available. Inspection part is same here. Question, अब the evaluation question है that did the target people attend, उन्होंने अटेंड किया, सोच में भी चेंज आया, अल्टीमेटली जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जिस भी तरह की हैं क्या उनके बारे में प्रॉपर्ली जानकारी मिली, क्या उसके बाद वो उसको समझ पाते हैं, तो वो जैसे कि एमएसपी की बात करते हैं, क्या किसानों को एमएसपी के बारे में पता चला, क्या उनके बाद में उनको प्रॉपर्ली जो एमएसपी में है क्या उसने उनसे उनकी इनकम बढ़ी या नहीं बढ़ी, किस तरह से क्या है वो प्रॉपर्ली उनके पास अवेयरनेस गई या नहीं। चैलेंजेस क्या देखने को मिलते हैं इसमें, अवेयरनेस नहीं होती है लोगों में, उनके राइट्स क्या हैं प्रॉपर्ली उनको इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेनिंग इक्विपमेंट्स, प्रॉपर्ली उनके पास गाइडेंस अवेलेबल नहीं हो पाती है, कैंडिडेट्स नॉट बीइंग एबल टू फिनिश, जो अपनी ट्रेनिंग है वो कैंडिडेट ट्रेनिंग नहीं पूरी कर पाते हैं अपने किसी रीजन से, फैमिली रीजन से, सोशल रीजन से, किसी भी रीजन से,
lack of knowledgeable manpower to educate the trained people issue आता है इसमें भी. Assessment and the limitation part, here again the same. Questionnaires जो था वो properly fill नहीं किया, कुछ question छोड़ दिए. Unavailability of the respondents due to relocation, change in the contact details. SAS 500 की हम बात करते हैं, is also important. New technology bridging the digital device in the internet, mobile phone access, addressing issues of the misinformation and the data protection. Data collection from the direct beneficiaries, immediate family members, service providers, trainers, imparting knowledge, funding entities, monitoring agencies, key program officials of the reporting entity. Review हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसमें MOU between the reporting entity and the implementing agencies. Introduction of the e-Pathshalas, prioritization of the last mile connectivity, stronger infrastructure to provide uninterrupted internet connectivity है कि नहीं है. Comprehensive cyber framework of the data security क्या है, safe digital transaction complaint redressal क्या है, reducing gender and the caste divide in the internet access अगर है तो, photographs of the various programs हैं वो हमें check करना है. Inspection and the interviews are the same. Questionnaire evaluation question are here कि जो क्वालिटी, हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ द सर्विस, जो सर्विसेज दी गई हैं उनकी क्वालिटी क्या है. अल्टीमेटली उसके बाद में सर्विसेज मिलने के बाद में क्या डाटा सिक्योरिटी में चेंज आया है. आज भी हम देखते हैं कि नॉर्मली लोगों के पासवर्ड 1 2 3 4 5 हो जाते हैं या उनके नेम से रख लेते हैं लोग. तो इस तरह की अवेयरनेस आनी चाहिए कि डाटा प्रोटेक्शन होनी चाहिए. whether there is a reduced spread of misinformation. टेक्नोलॉजी के टाइम में फायदा तो है तो उसका नुकसान भी है कि अगर कोई मिस इन्फॉर्मेशन है तो बहुत तेजी से स्प्रेड करती है. एंड लास्ट, बेनिफिशियरीज आर बेटर इन्फॉर्म्ड अबाउट द डिफरेंट स्कीम्स. भारत नेट प्रोजेक्ट, नेशनल डिजिटल लिटरेसी या गवर्नमेंट की जो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसके बारे में क्या उनको अवेयरनेस मिली या नहीं. चैलेंजेस क्या फेस करने को मिलते हैं. कॉस्टली इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, lack of digital literacy, resistance to change, language barrier. लैंग्वेज बैरियर भी होता है कि कुछ लोग जो कम पढ़े लिखे होते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की चीजें ज्यादातर स्टैंडर्ड लैंग्वेज इंग्लिश में होती हैं तो वो अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं, वो चेंज ही नहीं करना चाहते हैं. आज भी किसी को बताया जाए कि डिजिटल ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो तो कुछ पुराने लोग हैं कि वो डरते हैं या चेंज नहीं करना चाहते हैं. तो इस तरह की कुछ चीजें हैं. डाटा सिक्योरिटी ब्रीच बहुत बार देखने को मिलता है, वीक चैलेंज आता है. असेसमेंट लिमिटेशंस पे क्या है, सेम अगेन. क्वेश्चनियर्स जो था वो प्रॉपर्ली फिल नहीं किया गया था, प्रॉपर्ली फीड नहीं किया गया. नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स, को कंप्लीट सर्विसेज दी गई नहीं मिले. चेंज इन कॉन्टैक्ट डिटेल्स रहा, कुछ भी रीजन का हो सकता है. द लास्ट important is here SAS 1600, promoting welfare of the migrants and the displaced persons. Important क्या है कि इसमें डाटा कलेक्शन किनसे करना है, डायरेक्ट बेनिफिशियरीज. डायरेक्ट बेनिफिशियरीज इसमें कौन कौन है, माइग्रेंट वर्कर्स हो सकते हैं, डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर्स. इंपॉर्टेंट है एम्प्लॉयर्स ऑफ द डायरेक्ट बेनिफिशियरीज. जिन माइग्रेंट वर्कर्स का माइग्रेशन हो उनके एम्प्लॉयर्स से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, रिक्रूटमेंट एजेंसी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जा सकती है, मॉनिटरिंग एजेंसी से, द लास्ट की प्रोग्राम ऑफिशियल ऑफ द रिपोर्टिंग एंटिटी से इंफॉर्मेशन की जा सकती है. रिव्यू इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रैकिंग एंड एनालिसिस ऑफ द पॉलिसीज अफेक्टिंग माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब उनके लिए क्या पॉलिसीज अवेलेबल हैं उसको रिव्यू आप कर सकते हो. बेंचमार्क डाटा ऑन द नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, जिनका स्टैंडर्ड अगर है उसके लिए आप नंबर ऑफ वर्कर्स जो डाटा अवेलेबल है वो चेक कर सकते हो. मूवमेंट फ्रॉम सोर्सेज लोकेशंस टू वर्क लोकेशन, चेंज इन देयर लाइव्स, अगर उसमें कुछ चेंज हुआ है वो आपको चेक करना पड़ेगा. बेंचमार्क डाटा इन लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज इन रिसोर्स सोर्स लोकेशन, वहां पर क्या क्या इनके पास इंफॉर्मेशन सोर्स लोकेशंस हैं. डाटा एम्प्लॉयर्स, both organized the formal and organized in the informal sectors of the migrants and the employment practices. Inspection part is here again the same question है. Important, how was the quality of the services, जो migrants को जो services या information दी गई है वो किस तरह की थी, उसके बाद क्या उनकी लाइफ में चेंज आया, क्या उससे वो सेटिस्फाई हुए, क्या उनकी
लाइवलीहुड में या वर्किंग कंडीशंस में कुछ चेंज आया, या उनकी जॉब सिक्योरिटी में चेंज आया, या उनकी इनकम में कुछ इंक्रीज हुआ, वेदर however it's reduced on the following, क्या जो माइग्रेशन का रेशियो है माइग्रेंट्स का, क्या उसमें कुछ डिक्रीज हुआ, have the service enhanced their norms and the practical employers of migrant workers, suggestions from the beneficiaries to improve, जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज हैं उनसे इम्प्रूवमेंट के लिए सजेशंस लिए जा सकते हैं कि किस तरह से आगे इम्प्रूव इस चीज को किया जा सकता है। चैलेंजेस क्या क्या इसमें फेस करने को मिलते हैं? लैक ऑफ अवेयरनेस, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो इस तरह के लोग हैं, डिस्प्लेस पर्सन्स हैं, उनको राइट्स ही नहीं पता होते, या उनको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं पता होती, या स्कीम्स के बारे में पता नहीं होता कि क्या क्या उनके राइट्स हैं। डिफिकल्टी इन डाटा कलेक्शंस में डिफिकल्टी आती है, किस किस तरह से, क्योंकि वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले गए, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गए, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में गए, तो प्रॉपरली उनका डाटा नहीं मिल पाता है। लैक ऑफ कोहेरेंट पॉलिसीज, कोऑर्डिनेटेड एक्शन बिटवीन द डिस्ट्रिक्ट एंड द स्टेट, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ अगर कुछ काम करना है मिलकर के, तो उसमें कोऑर्डिनेशन में कमी आती है, चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। इम्पोर्टेंट लिमिटेशंस क्या है इसमें? लिमिटेशंस इज अगेन सेम, क्वेश्चनियर्स जो माइग्रेंट्स के पास था वो प्रॉपर्ली नहीं फिल किया, पढ़े लिखे नहीं थे किसी भी रीजन से, या उनको जो इन्फॉर्मेशन बताई गई वो प्रॉपर्ली समझ नहीं पाए, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ द, कभी वो मिले भी नहीं क्योंकि चेंज हो गए एक जगह से, जब तक एक जगह उनको सर्विसेज दी, इन्फॉर्मेशन दी, दोबारा जब गए तो वो रिलोकेट हो चुके थे, या इन्फॉर्मेशन उनकी चेंज कॉन्टैक्ट डिटेल्स की हो चुकी। So here I have completed my all the slides here. So if any of the participant have any of the question here, so now we can discuss if the time allows. हाँ जी, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अनमोल जी एक बात बताएं। हेलो अनमोल जी, कैन आई आस्क द क्वेश्चन? हाँ जी, बताइए। अनमोल जी, जैसा कि आपने अपने पीपीटी में या प्रेजेंटेशन में बताया कि हमें इतना सारा डाटा कलेक्ट करना है, हाँ जी, तो हाउ टू कलेक्ट अ रिलायबल डाटा, बिकॉज we are not going into only the paperwork, we are going into so many details and from so many sources that we हाँ need जी। to collect that social audit data. So how to collect a reliable social audit data? नहीं, उसके लिए देखिए है ना कि आपको अल्टीमेटली सबसे पहले तो क्या है कि प्रोजेक्ट की जानकारी होनी चाहिए, जिस सेक्टर का जिसका आप ऑडिट करने जा रहे हो उस प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए कि क्या अल्टीमेटली प्रोजेक्ट में किया गया है। तो जो प्रोजेक्ट में है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। आप सपोज जिसकी हम बात करते हैं किसी भी सेक्टर की, तो उस सेक्टर से रिलेटेड उसकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। गवर्नमेंट सेक्टर के पास जाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर के पास हमें जाना पड़ेगा, प्राइवेट सेक्टर से अगर हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ा तो प्राइवेट सेक्टर से लेना पड़ेगा। तो जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हो सकती है मैक्सिमम उतनी इन्फॉर्मेशन आपको लेनी पड़ेगी। जिस जिस रिसोर्सेज से हो सकती है उस रिसोर्सेज से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, और अल्टीमेटली लास्टली आप करो जाकर के जो अल्टीमेटली बेनिफिशियरीज हैं उनके पास में जाना पड़ेगा, वहां से ही आपको अल्टीमेटली पता लगेगा कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। हाँ जी, कोई और? अगर कोई और क्वेश्चन? यस सर, आई एम स्वाति। हाँ जी, गुड इवनिंग सर। फर्स्टली तो काफी अच्छा सेशन था, आई रियली एंजॉयड इट। Yes, sir, coming to the question, I just need to know that like in most of the so social audits questions were quality based. okay. So how we define the quality based, like can we say that like quality education was given, then how do we define quality, क्योंकि ये तो subjective हो गया है respondent के हिसाब से। अल्टीमेटली देखिए, अल्टीमेटली आपके पास दोनों चीजें होनी चाहिए कि अल्टीमेटली किस तरह की एजुकेशन दी गई वो आपको देखना पड़ेगा। अब सपोज अगर मैं बात करता हूँ कि एक ऐसा प्रोग्राम रन किया गया जिसमें कि हमने जो स्लम एरिया के बच्चे हैं उनको पढ़ाना है। अब पढ़ाने के लिए उनको अवेयरनेस कैंपेन या उनको एक कैंपेन रन किया गया, एक प्रोजेक्ट रन किया गया कि जहां पर उनको लिटरेसी दी गई, नॉलेज दी गई। तो अल्टीमेटली आपको जब जाओगे तो पता चलेगा कि वहां पर पहले क्या था, या अब उसके बाद में बच्चों को जो अल्टीमेटली पढ़ाने का बताया गया था क्या उनमें कुछ इम्प्रूवमेंट आई है, क्या वो कुछ पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। तो आप जाओगे, बात करोगे, इंट्रोड्यूस करोगे, चेक करोगे, तो वहां से आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी।
Okay, but not with the respondents, not from the respondents. नहीं, रिस्पोंडेंट्स भी है, बट अल्टीमेटली डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के पास आपको जाना पड़ेगा या उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनसे आपको मिलना पड़ेगा, तो लास्टली आपको वहां से इंफॉर्मेशन। बट सर मेरा एक अभी भी कंफ्यूजन है, जैसे कि सपोज एज अ ट्रेनिंग वाज गिवन टू मी एज अ स्टूडेंट, ओके, तो हाउ वुड लाइक सपोज आप मुझसे पूछ रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इज कमिंग दैट कैसा एजुकेशन था, वाज इट एग्जैक्टली। क्वालिटी आपको दिया गया था कि नहीं, तो मैं एज अ रिस्पोंडेंट कैसे बोलूंगी कि क्वालिटी था? मेरे लिए तो अच्छा बुरा मैं जो जानती नहीं हूँ, हाउ कैन नहीं, आई? एग्जैक्टली मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। देखो, जब हम जाएंगे खाली आपसे नहीं मिलेंगे। एक क्लास में अगर हमने एक सेशन लिया है तो वहां पर हो सकता है हमने 50 बच्चों का सेशन लिया होगा या 100 बच्चों का लिया होगा, हाँ जी, तो क्वेश्चनियर जाएगा, वो सबके पास जाएगा। ओके, जो एक सैंपल क्वेश्चनियर बनाया गया है वो हाँ जी, क्वेश्चनियर लेकर के सबके पास जाएगा, सभी को उसको रिस्पॉन्ड करना है। तो खाली आपका नहीं होगा, बाकी और भी बच्चों ने किस तरह से रिस्पॉन्स किया गया है उसका एक एवरेज लेकर के हमें अपनी रिपोर्ट को बनाना है। अल्टीमेटली किस तरह का रिस्पॉन्ड मिला है, ट्रेनर जो गए थे उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन पूछी जाती है, उसमें क्या जो आपको क्वालिटी ऑफ सर्विस ट्रेनर ने दी है वो प्रॉपर है कि नहीं है। सपोज अगर आप कोई इंस्टीट्यूट का ही अगर कोई प्रोग्राम अटेंड करते हो तो उसमें बाद में आपसे फीडबैक फॉर्म भरवाया जाता है, हाँ जी, तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं सबसे भरवाया जाता है, तो हर कोई अपने 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 हिसाब से उसको रिस्पॉन्ड कर देता है। तो जब आप उसको रिस्पॉन्ड करते हो तो अल्टीमेटली जो लास्टली एक लेवल है वो एक चेक करते हैं, तो उसमें एवरेज वो देख लेते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है, एवरेज रिस्पॉन्स क्या है। अगर उनको लगता है कि जी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, सबने भर दिया कि जी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए, या उसमें लैंग्वेज में कोई इशू था या कंटेंट की कोई इशू था, तो जो मोस्ट ऑफ द उसका एरिया निकल करके आएगा, जो एवरेज निकल करके आएगी उसको फिर फॉलो कर लेना। वो तो लास्टली क्या है कि जो ऑडिटर है उसकी जजमेंट है, ओके, उसको ओके, किस तरह से लाएगा। अनमोल जी, यहाँ पर एक इशू है कि मान लीजिए अगर आपने 50 लोगों को क्वेश्चनायर फॉर्म दिया, हाँ जी, तो आई डोंट फील मोर देन 50% ऑफ द पीपल फिल दैट फॉर्म और वो फिर यही रिटर्न तो कर। बार बार आप देखेंगे ना, तो हमने अपनी स्लाइड्स में यही डिस्कस किया कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्वेश्चनियर फॉर्म दिया जाता है लोग भरते ही नहीं है, तो अल्टीमेटली निकलेगा कहाँ से। तो यही अवेयरनेस होती है, ये इस चीज की भी अवेयरनेस होती है कि जी जब आप अपना सेशन अटेंड कर रहे हो तो प्रॉपरली आप अपना फीडबैक दीजिए, जो क्वेश्चनियर है उसको पढ़िए, आराम से पढ़िए, थोड़ा सा टाइम दीजिए और उसको, ताकि इनकेस अगर कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट का स्कोप है या अगर लगता है कि प्रॉपरली वो चीज नहीं हो पाई है, ताकि उसको टेक केयर किया जा सके, होना चाहिए मेरे हिसाब से। अनमोल जी, अनमोल इसमें जी, एक और मैं चीज है। इसमें, हेलो हाँ जी अनमोल बोलिए। अनमोल जी, इसमें एक और चीज है कि समटाइम्स देयर आर पर्सनल क्वेश्चंस आस्क्ड इन अ क्वेश्चनायर। तो उसमें होता क्या है, द पर्सन आर कंफ्यूज जो फिल करते हैं कि शुड वी रियली गिव अ करेक्ट आंसर टू इट और नॉट। अगर वो करेक्ट आंसर देते हैं, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कलेक्टिंग दोज क्वेश्चनायर फॉर्म्स। तो तो why and how the secrecy of the data can be maintained by the collector of those questionnaire forms? नहीं, यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि एक तो जो आपका अल्टीमेटली है, जो रिस्पॉन्डिंग सोशल एंटरप्राइजेस है, उन्होंने अपना क्वेश्चनियर दिया होगा जब उन्होंने अपनी सर्विसेज दी होंगी, वो उनके लेवल तक है। अब वो उनसे भी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सकते हो कि जो उस समय उनके पास अपने क्वेश्चनियर थे वो क्या थे, उनको आप एनालिसिस कर सकते हो। और लास्टली क्या है कि जब ऑडिटर एक जाता है वो भी अपने पर्सनल इंटरव्यूज करता है, वो भी अपना जाते हुए क्वेश्चनियर बना लेता है कि मुझे लोगों से बात करनी है, मेरे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं या मुझे क्या क्या आंसर्स उनसे चाहिए, किस तरह की मुझे रिक्वायरमेंट है, मुझे अपनी रिपोर्ट ड्राफ्टिंग में मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन इनसे लेनी है, वो एक बार चेक कर सकते हैं। तो वो जाएंगे, बात करेंगे, देखेंगे अब वो तो कितना लोग देते हैं, कितनी लेवल पर देते हैं, तो अल्टीमेटली कलेक्टिवली ही फिर उसका रिजल्ट निकल कर आएगा। हाँ Sir, जी here I have a question, Swati, here. To extend the question of Mr. Rishu only, हाँ जी, suppose if we are talking about a personal issue, like, women related. हाँ जी, So if I am the victim, will I be able to come and say कि हाँ, I am the victim of so and so? I will not give the real answer to it. So don't you think यहाँ कि थोड़ा यहाँ पर नहीं, हाँ, देखिए यहाँ पर ही इसी चीज के लिए होता है ना, देखिए अवेयरनेस इसी चीज के लिए है कि आपके पास आपके राइट्स अवेलेबल हैं,
इन केस अगर आप आगे बढ़कर नहीं आओगे तो आपकी हेल्प कौन करेगा? सबसे पहले आपको अपनी हेल्प खुद करनी पड़ेगी, तभी कोई आपकी दूसरा आकर के हेल्प कर पाएगा। अगर आप ही अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे किसी को तो उसका सॉल्यूशन कोई कैसे निकालेगा? Okay. Okay. हाँ जी। And sir, Okay. one more second question was there regarding the heritage set 600 where you were talking about. Exactly, हाँ जी। Sir, जब अगर heritage site में जा रहे हैं, every day new person is coming and visiting that site. Exactly. तो सर उनका कैसे हम लोग डेटाबेस बना सकते हैं हर दिन? नहीं, मैम देखिए इसमें क्या है कि हेरिटेज में जब आप जाते हो तो अल्टीमेटली क्या है कि टिकट सिस्टम भी होता है, ठीक है ना? अब काम किस तरह का होना है, अल्टीमेटली उसको किस तरह का कैंपेन रन किया गया है हेरिटेज के लिए, उसकी अवेयरनेस उसको एडवर्टाइज करने के लिए किया गया है या उसमें कुछ और इशू आ रहा था उसको आगे मेंटेन करने के लिए किया गया, किस तरह का प्रोग्राम रन किया गया है। प्रोग्राम रन करते हुए जब भी कोई अपना रन करता है ना, उस समय वो अपने कुछ रिकॉर्ड्स रखते हैं और अल्टीमेटली अगर उनका बेनिफिशियरी अवेलेबल नहीं है तो आप डाटाबेस ही चेक कर सकते हो टिकटिंग काउंटर से कि पहले कितने इस प्रोग्राम को रन करने से पहले कितना फुटफॉल था आपके टूरिस्ट का और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद एवरेजली आपका कितना फुटफॉल है, वो आप एक कंपेयर चेक कर सकते हो कि उससे आपका एडवर्टाइजमेंट से या आपकी उससे इम्प्रूवमेंट से कुछ इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, अवेयरनेस बढ़ी है या नहीं। ओके ओके, एक जनरली आप चेक कर सकते हो। हाँ जी। अनमोल जी, एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी आया था, हाउ विल बी मेजर स्टारवेशन रेट? आप आंसर करना चाहेंगे इसके ऊपर? एक बार मैम दोबारा बताएंगे कैसे है? स्टारवेशन रेट को हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं? नहीं मेजर मैम देखिए हम लोग क्या है, हम लोग ना डाटाबेस ही कलेक्ट कर सकते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि पहले क्या था और उसके बाद में जब हम लोगों ने कुछ अवेयरनेस किया है, जो उन्होंने प्रोजेक्ट रन किया है, उसके बाद कितने पीपल थे वहां पर, क्या उनके पास उनकी क्वालिटी थी जब उन्होंने वहां पे प्रोग्राम रन किया, फूड दिया, कुछ भी दिया, उस समय के बाद में उनका किस तरह से कितने लोगों को इम्पैक्ट पहुंचा है, उसी का एक एवरेज निकालना पड़ेगा। ये आपको जो डाटाबेस अवेलेबल है उसके थ्रू थोड़ा सा अपने आप को समझना पड़ेगा। तो सर ये सोशल ऑडिट का कंसेप्ट पूरा का पूरा एक सब्जेक्टिव कंसेप्ट हो जाता है जहाँ पे आपको प्रीवियस सिचुएशन एनालिसिस करनी होगी और आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट क्या सिचुएशन आई Exactly. और फिर उन दोनों का कंपैरिजन करके यू कैन कम टू द कंक्लूजन। एग्जैक्टली अल्टीमेटली मैम एम ही यही है कि आपको इम्पैक्ट क्या है, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया है, अगर आपने कुछ काम किया है तो उसका इम्पैक्ट क्या हुआ है। अल्टीमेटली आप थोड़ा टाइम में आगे और चेक करेंगे सोशल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि जो भी आपने इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न क्या है। कि अगर आपने सपोज बात की थी कि जी मैं 100 लोगों को पढ़ा दूंगा, कि मेरे एरिया के जो गरीब बच्चे हैं या मेरे एरिया के जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं कि मैं उनको पढ़ाऊंगा, तो जो गरीब होंगे या नहीं पढ़ सकते होंगे उन्हीं की हम बात करेंगे। या अगर मैं बात करता हूँ कि जी मुझे मेरा एक गांव है या मेरे 2 गांव है पास में या किसी एरिया में 3 गांव है, वहां पर पानी की प्रॉब्लम है, तो वहां पर मैं 3 कुएं खुदवा दूंगा। तो पता होगा कि पहले वहां पर कुएं नहीं थे, आपने फंडिंग उठाई किसी भी कॉर्पोरेट से कि जी मुझे यहाँ पर 3 कुएं खुदवाने हैं और उसका मुझे पानी वहां पर पहुंचाना है, तो उसी पर्पस के लिए आप वो काम करोगे। तो पहले पता होगा कि 3 नहीं थे या नहीं थे, 1 था या 2 थे, और उसके बाद में आपने कितने किए हैं, तो वो आपके पास रिपोर्टिंग एजेंसी जो है सोशल एंटरप्राइजेस उसकी भी इंफॉर्मेशन होगी अवेलेबल, और जो आपको फिजिकल इंस्पेक्शन करनी है वो भी आप जाकर के कर सकते हो, क्योंकि इन्होंने ऑन रियलिटी बताया है कि पहले 1 था, हमने 2 और खुदवा दिए तो टोटल 3 हो गए। उसके बाद में आप खुद चेक करके जो और आसपास के जो आपके लोग होंगे, जो आप गांव में जाओगे जिनसे भी, उनसे भी आप बात करके चेक कर सकते हो कि पहले कितने थे अब कितने हैं, तो उसके बेस पर आप अपना फाइनलाइज कर सकते हो। राइट सर, तो सोशल ऑडिटर के रोल में यही आ जाता है कि आपको बिफोर द प्रोजेक्ट जो सिचुएशन थी उसको भी एनालाइज करना पड़ेगा exactly. और आफ्टर द प्रोजेक्ट आपकी जो सिचुएशन आई है उसको भी आपको एनालाइज करना पड़ेगा, और ये एनालिसिस आपकी होगी थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू एनजीओ के डॉक्यूमेंट्स, थ्रू कॉर्पोरेट के डॉक्यूमेंट्स, all the information, and accordingly you will place your report, right? Exactly, ma'am. Exactly.
Truly said. Okay, thank you so much, Anmolji, for your insight onto the subject. It was really interesting. Although Thank the you. subject is not so good, but it was really interesting, and we really enjoyed each and every moment of your PPT. Thank you Thanks a so lot. much. Thank you, everyone. Thanks a lot. Thank you, Anmolji, for this wonderful, enlightening session. It was a very good session. Thank you, Rishuji. Thank you. Thank you.